प्रज्वलन कर रहे हैं बेलूर मठ से आए हुए परम पूज्य श्रीमद में तत्वविदान जी महाराज और अक्षयान जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो अवर्तयमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाशधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवागुंशस्तनोमिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय स्वामी विज्ञानानंद महाराज जी की जय।
जय। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माई की जय। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामी निराकारिणे आजन्म ज्ञान विज्ञान निष्णाताय महात्मने विज्ञानानंद पादाय भूयो भूयो नमोस्तुते। जी महाराज, अक्षयानंद जी महाराज, आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, सुखानंद जी महाराज, সমবেত সমস্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলের চরণে আমার বিনম্র প্রণাম। সমবেত ভক্তমণ্ডলী সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা স্বাগত জানাই। মেজরিটি বাংলা জানেন বলেই মনে হচ্ছে, বাংলাতেই বলি তাহলে। তীর্থরাজ প্রয়াগ গঙ্গা যমুনা ও অন্তঃসলীলা সরস্বতীর মিলনভূমি। পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এখানে প্রথম যজ্ঞ করেছিলেন, তাই এর নাম প্রয়াগরাজ অর্থাৎ তীর্থের রাজা। মহর্ষি ভরদ্বাজ, অত্রি, দুর্বাসা, পরাশর ঋষির তপভূমি এই মহাতীর্থ। পবিত্রতা স্বরূপিণী শ্রী শ্রী মা সীতা এখানে মা গঙ্গার পুজো করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রয়াগরাজ শক্তিপীঠও বটে। অলপী দেবী এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সতীর দক্ষিণ হস্তের পাঞ্জা পড়েছিল এই পুণ্যস্থলে। আধুনিক কালে শ্রী শ্রী ঠাকুর এসেছিলেন, ত্রিরাত্র বাস করেছিলেন এই প্রয়াগ তীর্থে। শ্রী শ্রী মা এসেছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের কেশ বিসর্জন দিতে। বলেছিলেন তার নিজের ভাষায়, ঠাকুরের চুল কি কম জিনিস? গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে ওই চুল জলে দেব বলে মনে করছি, হঠাৎ করে একটি ঢেউ এসে আমার হাত থেকে সেই পবিত্র জিনিস নিয়ে আবার জলে মিলিয়ে গেল। তীর্থ পবিত্র হবার জন্য তার চুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেল। স্বামীজি এসেছিলেন অসুস্থ স্বামী যোগানন্দজির পাশে। এছাড়াও ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী পার্শ্বদেরাও বেসেছেন, বিভিন্ন সময় তপস্যা করেছেন। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি জীবনের অন্তিম কয়েক দশক এই মহাতীর্থে বাস করেছেন। তিনি ত্রিবেণী মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন, আপনারা সকলে জানেন। সদ্য প্রয়াত আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্মরণানন্দজি তার জীবনীতে বেরিয়েছে, তিনি যখন এই নৌকো করে ত্রিবেণীতে স্নানে যাচ্ছিলেন, যমুনার উপরে তিনি বংশী বাদনরত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। ইতিহাসে আসলে আমরা দেখি কুম্ভ মেলার উৎপত্তির সঙ্গে সমুদ্র মন্থনের কাহিনী বিজড়িত। ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না, সময় খুব সংক্ষেপ। যে চারটি জায়গাতে অমৃত একটু সেই চলকে পড়া আমরা বাংলায় যাকে বলি পড়েছিল, এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজ তারই অন্যতম। সপ্তম শতাব্দীতে আমরা হিউয়েন সাং এসেছিলেন, তার বর্ণনায় পাই সম্রাট হর্ষবর্ধনের দানের কথা। নিজের বোনের কাছ থেকে এক টুকরো কাপড় চেয়ে নিয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটুকু পর্যন্ত নিয়ে দান করে দিয়েছিলেন এই পুণ্যক্ষেত্রে। শঙ্করাচার্যের জীবনে উল্লেখ পাই প্রয়াগ তীর্থে কুমারিল ভট্টের তুষানলে প্রবেশের কথা। বর্তমান কুম্ভ মেলা শুনলেন 2025, 144 বছর বাদে এরকম গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আছে, এই মহামানবের, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এই হচ্ছে মহামানবের সাগর তীর। গভর্নমেন্টের ডাটা, এই দীর্ঘ 45 দিন, 13ই জানুয়ারি থেকে 26শে ফেব্রুয়ারি, প্রায় 45 দিন। এক্সপেক্টেড অ্যাটেন্ডেন্স প্রায় 40 কোটি লোক, 400 হেক্টর জমি, 40 স্কোয়ার কিলোমিটার জমির ওপরে এই মহামেলা সংগঠিত হচ্ছে। এবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তথা ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ
জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলনভূমি, এই পুণ্যভূমি বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, সকলে সেই একই উদ্দেশ্য পুণ্যতীর্থে বাস করে। ঠাকুর বারবার বলছেন নির্জন বাস ও সাধুসঙ্গ দুটোরই সুযোগ ভগবান কৃপা করে আমাদের এনে দিয়েছেন এখানে। আমরা সেই দুর্লভ সুযোগ ব্যবহার করবার চেষ্টা করব। এটা পৃথিবীর বৃহত্তম আধ্যাত্মিক মেলা। আরও শুনলে আনন্দিত হবেন। এই উপলক্ষে এখানে 8,000 নতুনভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। তার মধ্যে অনেক কিশোর যুবক সব রকমই আছেন। খুব আনন্দের খবর। সকলে জানেন 3টি পাতা নিয়ে একটি সম্পূর্ণ বেল পাতা হয়, দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে এই 3টে পত্র হলো যেন শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা এবং স্বামীজির ভাবধারা ও উপদেশ। দ্বিতীয় দর্শনেই ভক্তিযোগের কথা বলেছেন, ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়, আর সৎসঙ্গ। জ্ঞানযোগের কথা বলেছেন, সর্বদা সদাসৎ বিচার করবে, ঈশ্বরই সৎ বস্তু কিনা নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ বিচারের পথ কিনা, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। বলছেন ধ্যান করবে মনে বনে ও কোণে, রাজযোগ ধ্যানযোগ যাই বলুন, আর কর্মযোগ সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। শ্রী শ্রী মায়ের প্রসঙ্গে যদি আসি, একই শিক্ষা একই ভাব, ভাষাটা কিছু আলাদা। শ্রী শ্রী মাও বিভিন্ন সময় ভক্তি জ্ঞান কর্ম রাজযোগ সব কথাই বলেছেন, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। 4 যোগের সমন্বয় হচ্ছে শ্রী শ্রী মায়ের জীবন। অধিকারী ভেদে কারুক্ষে বলেছেন রামকৃষ্ণ নাম 10 বার জপ করলেই যথেষ্ট। আবার কারুক্ষে বলেছেন ওই দেয়ালে যে ঘড়িটা দেখছো টিকটিক করছে, সদা সর্বদা সেই রকম জপ করবে। সমস্ত কাজ করেছেন। ভোর 3টে থেকে রাত্রি 11টা পর্যন্ত নিরন্তর কর্ম, কিন্তু সব ঠাকুরের সেবা জ্ঞানে। আর অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে মা বলতেন 1.5 সের ছাই বই তো আর কিছু নয়। শাস্ত্রে আমরা পড়েছি অনিত্যাম অসুখম লোকম ইমং প্রাপ্য ভজস্বমাম। 1.5 সের ছাই হচ্ছে আলটিমেট পরিণতি। এছাড়া মা নিত্য লক্ষ জপ করতেন এত কাজের মধ্যেও। জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ সবই পাচ্ছি আমরা শ্রী শ্রী মায়ের জীবনেও। স্বামীজির ক্ষেত্রে তো প্রতীক যে রামকৃষ্ণ মিশনের 4 যোগ তার সমন্বয়, একটি যোগ বা 4টি যোগের সমন্বয়ে আমরা সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারি। শিবজ্ঞানের জীব সেবা, আত্মা নামক স্বার্থম জগদ্ধিতায়, যা কিছু স্বামীজি বলেছেন সব সেই 4 যোগেরই সমন্বয়। গঙ্গা জ্ঞান দায়িনী, যমুনা ভক্তি দায়িনী, অন্তঃসলীলা সরস্বতী এখানে। এটি যেন সাধকের নিভৃত সাধনা। এবার এই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত ধারা এখান থেকে উত্তর বাহিনী হয়ে কাশী তীর্থ, দক্ষিণেশ্বর তীর্থ এবং আধুনিক যুগের মহাতীর্থ বেলুর মঠে প্রবাহিত। নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে শ্রী শ্রী মায়ের দর্শন, প্রভু এসে সেই গঙ্গার জলে মিলিয়ে গেলেন। স্বামীজি সেই জগলের গঙ্গা জল অগণিত জনসমুদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন, আর সেই জয় রামকৃষ্ণ বলে, আর সেই স্পর্শে সকলে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তো সেই প্রভুরূপী ত্রিবেণী গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সাধক কবি শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজির একটা অদ্ভুত সুন্দর গান আছে, সকলে জানেন আপনারা, যে রামকৃষ্ণ পুত গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায়, হোক অবসান ব্যর্থ প্রয়াণ, এসো ছুটে এসো ধরি গোপায়, বঙ্গ হৃদয় গোমুখী হইতে করুণা গঙ্গা বহিয়া যায়, এসো ছুটে এসো কে আছো মানব শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়। নমস্কার। स्वामी भेदाचितानंद जी महाराज ने अभी हम सबको प्रयागराज व महाकुंभ मेला के महत्व के बारे में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन कानपुर, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आप आएँ और हम सबको संबोधित करें।
स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय स्थान पर परम पूज्य स्वामी तत्ववेदांत जी महाराज को प्रणाम। प्रयागराज आश्रम के अध्यक्ष सचिव परम श्रद्धेय स्वामी अक्षयान जी महाराज जी को प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी साधु ब्रह्मचारी और अभी स्वामी भेदाधितन जी और सुखान जी महाराज ने अपना वक्तव्य रखा, उनको भी अभिनंदन और शुभेच्छाएं। आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हैं और ये बड़ा एक शुभ अवसर है। और ही 2 दिनों बाद शाही स्नान है परसों, तो उससे पहले इस मेले में जो हमारे आश्रम का एक कैंप है इसका उद्घाटन हो रहा है। अभी पूज्यपाद स्वामी तत्ववेदांत जी महाराज ने दीप प्रज्वलन और आरती द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया। इसके कैंप में जो लगा है ये मेला 1930 की एक घटना मैंने सुनी थी। उस समय रामकृष्ण मिशन के द्वितीय अध्यक्ष श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज थे और उनके पास कुछ साधु ब्रह्मचारी आए। उसी साल, ये 1930 की घटना है, उसी साल कुंभ मेले का आयोजन था। तो उन्होंने महाराज से अनुमति चाहिए कि हम इस मेले में जाके स्नान करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा हाँ, ये सनातन परंपरा, यहाँ पर इतने वर्षों से इतने लोग आके इस शुभ कार्य को कर रहे हैं, तुम अवश्य जाओगे, तुमको रोकने वाला कौन है, ऐसा महाराज ने कहा। तो ये एक हमको इस बात से अवगत कराता है कि कैसे यह जो एक कुंभ मेला है ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी भेदादिता जी ने इसके बारे में वर्णन किया कि ये हमारी जो परंपरा है जिसमें समुद्र मंथन की कल्पना है या जिसको हम मानते हैं, उसमें उसी के अंतर्गत जब अमृत बाहर निकलता है समुद्र मंथन से और उसको लेके जब गरुड़ जी जाते हैं तो 4 स्थानों पर उसके वो छल जाता है, कुछ गिरता है और उसी नक्षत्र, उसी एक जो ज्योतिषी गणना के अनुसार हर 12 साल बाद यहाँ एक मेला होता है और उसे कुंभ मेला, क्योंकि वो कुंभ का घड़ा था जिसमें कि वो अमृत था, इसलिए कुंभ राशि भी है। तो इसलिए ये मेला उसी घटना की मानो पुनरावृत्ति करने के लिए है और साथ ही चूंकि वो बड़ा ही पवित्र क्षण था तो इसलिए इसको माना जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या सिस्टर निवेदिता थी वो कहती थी कि हिंदू मन सब समय पुण्य की खोज में रहता है, कहाँ पुण्य मिल जाएगा, किस मंदिर में जाके, किस मेले में जाके, किस उत्सव में जाके, किस पूजा में करके। क्योंकि हिंदू मन की एक आकांक्षा ये रहती है कि मन पवित्र रहे, मेरे पास पुण्य हो जिससे कि मैं धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से बाहर आकर पाप और पुण्य दोनों से परे जाकर मुक्ति प्राप्त करूं, क्योंकि यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो हम इसको मन में रखते हुए ये भी हमें याद रखना होगा कि जैसा कि ये परंपरा से जाना जाता है कि आज से लगभग 1400 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा कि ये कुंभ मेला के समय जितने भी दशनामी संप्रदाय के साधु हैं और उसके अतिरिक्त बाकी जो संप्रदायों के साधु हैं, जो भी इस विराट सनातन धर्म के
छत्र छाया में आते हैं, सभी यहाँ एकत्रित होंगे। आजकल की भाषा में कहेंगे इट्स ए ग्रेट गेट टुगेदर, ग्रेट गेट टुगेदर। तो सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। इससे जो सनातन धर्म के जो मतावलंबी हैं, जो इसको मानते हैं, उन्हें एक प्रकार का अवसर मिलता है एक दूसरे को समझने का, जानने का। और ये एक समय है जब हम कुछ पवित्र बातों को सुनते हैं। प्रवचन है, जैसे यहाँ कितने अखाड़े हैं, सैकड़ों हजारों स्थानों पर आप देखेंगे लोग एकत्रित हैं, प्रवचन हो रहे हैं, पूजा हो रही है, विशेष आयोजन हो रहा है, जिससे कि मन पवित्र हो, जिससे कि मन भगवान की ओर लगे। और इसीलिए सभी साधु सन्यासी यहाँ आते हैं। और वैसे भी तो सारा साल त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जहाँ भी भारत से बाहर या भारत के अंदर जहाँ भी कोई व्यक्ति सनातन धर्म का अवलंबी होता है, वो यहाँ आता है। उसे यहाँ स्नान करने की विशेष महिमा उसे मालूम है और वो करना चाहता है। कहाँ कहाँ से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से लोग आते, कहते कहीं त्रिवेणी जाना है, वहाँ पे संगम में हमें स्नान करना है। मैं एक बार आया था तो ऐसे ही एक सज्जन आए हुए थे दक्षिण भारत से, और वो चल नहीं पा रहे थे। उनके वो कुछ शायद धार्मिक गुरु थे, तो उनके शिष्य उनको उठा के लेके आए और स्नान करवाया, और वो रोने लग पड़े कि मैं त्रिवेणी में स्नान कर पाया। तो इस प्रकार की एक महत्ता है। और वैसे भी हम देखें कि जो त्रिवेणी है ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक देवी है। आप में से जो रामकृष्ण भावानुरागी हैं, आप जानते होंगे कि श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे इस प्रयागराज आश्रम में की नींव रखी, उसको आरंभ किया, 28 से भी अधिक वर्षों में यहाँ पे थे, उनको कितनी बार माँ त्रिवेणी के दर्शन हुए। एक बालिका के रूप में, जिसने 3 वेणियां हैं, 3 पीछे जो उनके बालों को बांधती हैं, तो वो उनके पीछे पीछे गए। तो त्रिवेणी माँ को दर्शन कृष्णदेव ने उन सब चीज़ों को जो हमारे पुराणों में आती हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में आती हैं, उन्हें अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। और उनकी शिष्य परंपरा में भी यही बात हम पाते हैं कि वो अपने को स्वयं अनुभव कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इसके बारे में बोले हाँ ऐसा होता है, ऐसा एक पुस्तक में लिखा है। और श्री राम कृष्ण देव की जो इस परंपरा में आज यहाँ ये जो कैंप हुआ है, और भी आप सुनेंगे, बहुत से वक्ता भी होंगे, तो वही है कि हम सब मिलके कुछ अच्छे विचारों को सुने। आप सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस में हैं। कुछ लोग रिटायर हो सकते हैं जो आए हैं, लेकिन बाकी लोग तो फिर भी काम छोड़ के आए हैं। किस लिए? जिससे कि हम कुछ शुभ विचारों को सुने, कुछ सत्संग करें, जिससे मन और पवित्र हो, भगवान की ओर लगे। तो ये बात हमें ऐसे जब हम प्रवचनों में आते हैं तो हमें फिर जीवन का लक्ष्य भी याद आता है। मैं एक दो बात कहकर प्रिवाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अभी खाने का समय भी हो गया है। ये प्रवचन का समय तो है नहीं लंबा, अभी तो महाराज ने कहा था 12 बज गए, लेकिन अभी तो 1:15 हो गए हैं। तो एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसको लेके एक बहुत सुंदर बात हमने एक बार सुनी थी। कहते जीवन का लक्ष्य, जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है, हमारे ग्रंथों में इस बात को वर्णित किया गया है कि जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, या ईश्वर की प्राप्ति करें, या मोक्ष की प्राप्ति करें। ये जीवन का लक्ष्य है। तो फिर किसी ने इसको इस दृष्टि से समझाया, देखो इसको भूलना संभव ही नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप इलाहाबाद में बैठे हैं या प्रयागराज में बैठे हैं और आपको दिल्ली जाना है। रास्ते में गाड़ी एक जगह रुकती है। आजकल तो गाड़ियों के अंदर ही व्यवस्था है, लेकिन उदाहरणार्थ वहाँ आपको चाय पीने की इच्छा होती है। मान लो इटावा में गाड़ी रुकती है, आप उतरते हैं और देखते हैं पास के ठेले में कहाँ पे चाय दिखाई दे रही है, जाके कप में डलवा के खड़े हो जाते हैं। लेकिन पी तो रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? गाड़ी पर। गाड़ी ना छूट जाए। चाहे कितनी भी अच्छी चाय हो, कितनी भी अच्छी बातचीत हो रही हो, एक हिस्सा मन का उस गाड़ी पर है, उस ट्रेन पे जिसमें आप सफर कर रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है तो
चाय शायद वहीं छोड़ के वो चल पड़ता है। तो कहते ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है। किसी को कुछ पैसा कमाना है, किसी को कुछ डिग्री प्राप्त करनी है, किसी को कुछ बिजनेस चलाना है, किसी को कुछ और करना है। वो तो ये सब ऐसे ही है जैसे रास्ते में आप थोड़ी देर के लिए उतरे और चाय पी। गाड़ी का गंतव्य याद रखना है, और गंतव्य क्या है? वही जो हमारे शास्त्रों में परंपरा रूप से श्री रामकृष्ण देव ने बड़ी सुंदर बात कही, ईश्वर लाभ ही जीवन का लक्ष्य है। अर्थात अपने स्वरूप को पहचाना, क्योंकि सनातन धर्म में जब हम ईश्वर लाभ की बात करते हैं तो स्वरूप की भी बात करते हैं। ईश्वर हमसे अलग नहीं है, हम ईश्वर से अलग नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन के लक्ष्य को याद रखें। और एक बात है, भक्ति के विषय में अभी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हुई थी। हम सबको भक्ति चाहिए। अच्छा, भक्ति के भी हम नारद भक्ति सूत्र या अन्य विषयों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत गूढ़तम बातें लिखी हैं। लेकिन एक बड़े ही साधारण दृष्टि से भक्ति को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि भक्ति मानो दो तरह की होती है। एक है साधन भक्ति, एक है साध्य भक्ति। तो साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या होता है? बोले साधन भक्ति अर्थात हम ईश्वर को साधन बना लेते हैं। कहते हैं प्रभु मेरी ये आवश्यकता है, मेरे ये कष्ट है, इसको दूर करो, इसका निवारण करो, इस आवश्यकता को पूर्ण करो या इस दुख का निवारण करो। तो ईश्वर के पास हम उसको एक साधन बना के अपनी समस्याओं को, अपनी चीजों को ठीक करने के लिए जाते हैं। ज्यादातर हम लोगों में इस प्रकार की भक्ति ही पाई जाती है, जिसे दूसरा नाम सकाम भक्ति भी कहा जाता है, अर्थात जिसके साथ काम अथवा इच्छा हो। लेकिन और एक भक्ति है जो साध्य भक्ति है, जहां हम ईश्वर को ही चाहते हैं, ईश्वर से नहीं चाहते। हम ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। कहते हैं कि आपका हूं और आप मेरे हैं। इसमें भी और अगर थोड़ा सूक्ष्म रूप से उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो वो मेरे हैं, उसमें भी शायद थोड़ा सा एक सूक्ष्म अहंकार होगा। मैं उनका हूं, ये मानो पूर्ण रूप से एक भक्ति का एक रूप है कि मैं उनका हूं बस। तो ये जो हम भक्ति की बात करते हैं तो हम ईश्वर के पास अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, इसमें कुछ खराबी नहीं है, वो हमारे सर्वस्व हैं, उनके लिस्ट लेके जाना कुछ नहीं खराबी। हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये ठीक करनी है। लेकिन उससे भी उत्तम जो है वो है कि ईश्वर के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर उन्हीं में लीन होने के लिए, उन्हीं के लिए सब वही हमारे सर्वस्व हैं, ऐसा मन में रखें। तो ये कुछ बातें हैं। आज हम यहाँ एकत्रित हैं, इस शुभ पावन पर्व का आरंभ हो रहा है और अब देखेंगे अगले 40-45 दिनों में बहुत से यहाँ साधु महात्मा आएंगे, भक्त आएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि करोड़ों की संख्या है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इस कुंभ मेला। इससे बड़ा और कहीं सब लोग मिलके एकत्रित होते हों ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं कि आज से 70-80 साल पहले जब अंग्रेज थे भारत में तो एक कुंभ मेला तब 1947 के लगभग हुआ था। तो उसको देखने के लिए उस समय के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो देखना चाहते थे। तो उनको कहा मैं हेलीकॉप्टर में ऊपर ले जाइए, मेरे को दिखाइए। वो देख के दंग हो गए। उनका एक ही प्रश्न था, लॉर्ड माउंटबेटन का, उनका एक ही प्रश्न था, हाउ डिड सो मेनी पीपल कम? कैसे इतने लोग आ गए? कोई तो इनविटेशन नहीं भेजा, कोई तो कम्युनिकेशन नहीं किया। आजकल तो फिर भी व्हाट्सएप है, पहले तो कुछ भी नहीं था। कैसे लोग? ये भारत है। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस लौट कर आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत का जो प्राण है वो धर्म है, धर्म प्राण ही भारत संस्कृति का आधार है। तो इस बात को हम मन में रखें। यहाँ आए हैं, यहाँ इस आश्रम से या अन्य जगहों पर भी जाके आप प्रवचन सुने, अच्छे काम करें। और इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है कि स्नान हो, त्रिवेणी में या गंगा जी में स्नान हो, उसको अवश्य कीजिए। ये मत कीजिए वो ठंडा है और हम
सिर्फ ऊपर से डाल के चले जाएंगे, नहीं। तो इसी कुछ बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्ते और प्रणाम। आत्मश्रद्धानंद जी महाराज को सुना। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि कुंभ मेला सिर्फ मेला नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। उन्होंने कुंभ मेला के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया, साथ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, इसके बारे में बताया। मैं आपको आपके चरणों में प्रणति ज्ञापित करता हूँ आपके संबोधन के लिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी तत्वविदानंद जी महाराज, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मठ एवं मिशन बेलूर मठ, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और हम सबको संबोधित करेंगे। स्वामी तत्वविदानंद जी महाराज। ॐ रामकृष्णमहं वन्दे शारदां च सरस्वतीं विवेकन्यासिनं वन्दे पार्षदांश्च महाजनान् यत्र प्लुतानां नयमो नियन्ता यत्र स्थितानां सुगतिप्रदाता यत्र आश्रितानाम् अमृतप्रदाता सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सौन्दर्यवेणी सुरसार्धवेणी माधुर्यवेणी महनीयवेणी रत्नैकवेणी रमणीयवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी का चरण वंदन करते हुए, शारदा माता की चरण वंदन करते हुए, विवेकानंद स्वामी जी का चरण वंदन करते हुए, विज्ञानानंद स्वामी का चरण वंदन करते हुए, अभी आप सभी को अभिनंदन करते हुए सबका बहुत बहुत नमन करता हूं। इधर पधारे हुए जो सन्यासी महात्मा है, विशेषकर इस कार्यक्रम का यह सभापति स्वामी अक्षयानंद जी, पूज्य स्वामी अक्षयानंद जी महाराज है, उनको चरण कमल में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। इधर उपस्थित सभी सन्यासियों को मैं श्रद्धा सुमन समर्पण करता हूं। इधर आए हुए जो भक्तजन है, श्रद्धालु है, इन सभी को मैं नमन करता हूं, शुभकामना देता हूं। इस पूर्ण कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन गंगा जी के तट पे, यमुना जी के तट पे किया गया है। इस गंगा जी का तट में जो कुछ किया जाता है उसका महत्व गंभीर है। जब गंगा जी का तट का याद आती है तब हमारा जो आदि कवि वाल्मीकि जी का भी याद आती है।
हम लोग जानते हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है। संस्कृत का जो आदि काव्य, उसका पहला श्लोक वाल्मीकि जी का मुख से निर्गत हुआ था। इसलिए वाल्मीकि का जो प्रथम श्लोक वो संस्कृत भाषा में था। इसलिए मैं पहले 2 शब्द संस्कृत में कहना चाहता हूं। अत्र समागतेभ्य सर्वेभ्य न्यासी जनेभ्यः ब्रह्मचारी जनेभ्यः प्रव्रजितेभ्यः अहम प्रणतिततिं निवेदयामि। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः समागताः भक्तजनाः, तेभ्योऽपि अहम श्रद्धा सुमनांसि समर्पयामि। अयं महाकुंभ समारोह पवित्रे प्रयागराजे सुपुण्ये महातीर्थे समायोजितः। अत्र अमृत कुंभ स्नान महोत्सव पालित होता है, पालन किया जाता है। अमृत कुंभ महास्नान की पालन किया जा हम लोग वयं कुर्मः। एतत् अमृतत्वं भारतवर्षस्य सनातन परंपरायाः महत्वपूर्णः विषयः अस्ति। यतः अमृतत्वलाभाय एव वयं सर्वे मनुष्यदेह धारयामः। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम् आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। पुण्य, सलील का जो पुण्य था, नदी जल का जो पावनता वो बढ़ जाती है और उसमें डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु जन पाप से संपूर्ण रूप शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका महत्व है। नमः श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद शूरय सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।